A heartfelt welcome to everyone present here, and thank you for being a part of this historic occasion. Together, let us pave the way for a brighter and more connected future. Shri Shirish Joshi, CBO, ONDC. Shri Rahul Dubey, Director, Innovations, Grameen. And Srimati Nandita Sharma, Lead for Social Sector, ONDC. A round of applause for the dignitaries here. Thank you, media, for being here and covering this event. ONDC is a very, very interesting world first, I should say an experiment, because it's still on its way to getting established. But already in its short 1.5-year real life journey, we are seeing signs of the promise with which it was started. The idea of democratization, we all understand democracy. We've just been through one of the major events of democracy, which is our national election, world's largest democracy, right? There we understand what democracy means. Each person has a vote. What does democracy mean in commerce? In commerce, it means each person has an opportunity for business. And as we look at the existing structure of e-commerce around the world, not just in India, before ONDC, we have a form of e-commerce that is a platform e-commerce. And in a platform, there is one requirement, which is the buyer and seller both must be present in the same application. Now, when that requirement is there, then automatically everybody, as a seller, you want to be there where the buyers are. Buyers want to be there where the sellers are. And so over time, what happens is only one or two players become big because everybody wants to be in the same place. No seller wants to keep track of all the places where buyers are present. No buyer wants to keep track of all the places where a seller is present. So the structure of an e-commerce business, which is dependent on the platform approach, where a buyer and seller must both be present, automatically leads to this gravitational force. So world over, this is true. Right? And India also, we see it. When you look at e-commerce, we see only a couple of players. When we think of ride-hailing, we can only think of a couple of players. If you want to order food, again, you can think only of a couple of players. You want to buy medicine, again, a couple of players. Because nobody wants to be, thinking of, I have to buy this, now which application I have to go to buy that. You would rather go to that one which has everything and do it. The problem is that despite that, we have multiplicity. So on the application on which you order things for your home, you can't order food. On the application on which you order food, you can't book a taxi. So while individual applications might have done very well for a particular sector, we end up having to do multiple applications for multiple things. But that is not how commerce was. When you went into the neighborhood market in the pre-digital era, you bought your stationery and you bought your clothes and you bought your vegetables and you went to your bank and updated your passbook. You did all the activities you needed to do in a single trip. Internet is open. But think of all the activities you do on the internet, whether it is watching videos, doing research, reading up information, getting entertained, doing social media, doing your services like banking. You use only one browser. Do you have one browser for banking and one browser for videos and one for social media? You don't. That is how open networks should be and convenient. And once everyone is on a single network, then you have the opportunity for any buyer to buy from any seller, regardless of category, regardless of scale. Right? And that is the open network that ONDC is bringing in. We have made, I would say, a pretty promising start. We really began in Jan of last year, and in all of January, we had only 1,000 orders. 1.5 years later, June, we ended at nearly 10 million orders. So that tells us that this different way of doing business is real. It's not hypothetical, it's not conceptual, it is real, and it is getting adopted. Not everyone has done it overnight, but it is getting adopted faster, I would say, than some of what we consider established got established when they initially came in. The second thing is that 80% of the sellers on our network are small sellers, and by small sellers, I mean standalone individuals, like a kirana store, like a restaurant, like an artisan, like a farmer. 80% contributing to more than half the orders are by small sellers. More than half the orders, even today, in this initial stage, are coming from Tier 2 cities and beyond, not Tier 1 cities. Tier 1 is contributing less than half, although that's where e-commerce is largely well developed. So even in its fledgling small life, ONDC is demonstrating the power of making commerce available to everyone. Now, India is a country of 140 crores, that's 10 digits. So whatever initiative you take that is in hundreds or thousands, while maybe material for most countries, actually for India becomes small. And therefore, it's very exciting when an organization of the size and scale of Grameen Foundation joins hands, because we know now they're operating in 7-8 digit size scale.
which is going to bring force to this network very quickly. So we are looking for many such entities, and therefore today we celebrate the connection with Grameen Foundation on helping us reach to the deep parts of the country, helping us access people who have a lot of things to sell. Everybody who makes something to sell is doing it because they have the skill or because there is a demand in the market for them. And so how do we connect all of this and realize their dreams and their full potential? Not just the activities they do today, but the full revenue potential of all the skill sets and capabilities that they're bringing in. So today's hand-holding and handshake is very exciting for us because it allows the idea and the dream of ONDC to move forward in a big way to the deep parts of the country. And thank you, Bharti ma'am. Thank you, Grameen Foundation, for bringing us together. And we are excited to talk about the journey forward. Thank you. I will, with that, now move on to the single most important thing for which we are here today, which is the signing of the MOU between these two amazing organizations, ONDC and Grameen. I would request Mr. Pankaj Srivastava to come up on stage and facilitate the process. Now that the MOU signing is done successfully, we will move to the next exciting thing on the agenda that we have, that is a media interaction and question and answer. And we will follow that up by taking questions from the audience. So, इसका आइडिया यही है कि जो रिमोटेस्ट पॉकेट्स हैं उनमें जाए. ग्रामीण जैसे हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क मैनेजर्स के साथ पहले ही काम कर रहे हैं और उनके साथ हम लोग जो रिमोटेस्ट पॉकेट्स हैं जहाँ पर ये डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के ज़रिए से विमेन जो भी पुअर लोग हैं जिनका बैंक खाता भी प्रॉपर चल रहा नहीं है उनके साथ हम लोग काम करते ही हैं ग्राउंड पे. तो ये इस पार्टनरशिप के साथ हम ये जो ONDC का चमत्कार है इसको भी ग्राउंड में एंड तक ले जाने का हमारा काम है. जहाँ जा सकता है वहाँ तो नेचुरली जाएगा, लेकिन बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं कंट्री के, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कि शायद प्रॉपरली इलेक्ट्रीफाइड भी नहीं है, जहाँ नेटवर्क भी नहीं है लेकिन नेटवर्क एक्चुअल में परफॉर्मेंस में नहीं है. तो ऐसी जगह पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू ये जो लास्ट माइल का गैप हम कहते हैं पूंछ, उसको कवरेज करने का काम ही हम इसके थ्रू करेंगे. तो इसे छोटा बड़ा नहीं रहेगा, फोकस रहेगा कि अनकवर्ड जहां बिना असिस्टेंस के, बिना सहयोग के व्यक्ति खुद ई कॉमर्स का फ़ायदा नहीं उठा सकता, वहां पर सेलर साइड भी आर्टिजन छोटे छोटे जो गांव में बना रहे हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ पाए अपना पूरा ब्रोशर लेके. तो ये हमारा प्रयास रहेगा. अभी फ़िलहाल जो है हमारा जो पार्टनरशिप है, जो अपने हमारे पार्टनर्स हैं उनके थ्रू हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स में अबाउट 5 लाख BC से हम डायरेक्टली अभी भी ऑलरेडी टच में हैं जिनके थ्रू काम चल रहा है. हमारा आइडिया ये है कि हम BCFI एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो हमारे की पार्टनर्स हैं. उनके थ्रू जितने भी कॉर्पोरेट BCs हैं या BCNM पार्टनर्स हैं वो सारे उसमें मेंबर्स हैं. हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पार्टनर्स के संग करते हैं. तो हमारे पास एक्सेस पूरा 3.3 मिलियन BCs का है. तो हम अपने पॉकेट्स अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमें पॉकेट सेलेक्ट करके वी विल गो देयर, उसके बाद हम इसको स्केल अप कर देंगे नेक्स्ट लेवल पे. और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि ONDC से लिंकअप कराने के लिए आपका क्या प्रोसेस है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाउ यू विल मेक इट पॉसिबल कि ONDC के इस प्लेटफॉर्म पे वो आएँ, कैसे आएंगे, क्या क्या प्रोसेस है? क्योंकि जो ग्रामीण में लोग हैं, भाषा अलग है, 5 स्टेट में 5 भाषा अलग है, लोग अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है. आपने मैडम खुद कहा कि लोगों के पास बैंक अकाउंट तक नहीं है. मैं इसका जवाब देता हूँ. पहले तो मैं एक नया शब्द सबको सिखाना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म शब्द जो है ये आज के हर अभी तक जो ई कॉमर्स चल रहा है उसको जोड़ के हम उसको सही मानते हैं. ONDC का तरीका नेटवर्क है. तो आपका सवाल मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कि हम कैसे इन ग्रामीण लोगों को नेटवर्क से जोड़ेंगे, प्लेटफॉर्म से नहीं. तो ये एक नया शब्द है. ONDC का ई कॉमर्स तरीका नेटवर्क वाला है, प्लेटफॉर्म वाला नहीं. अब जोड़ने के लिए किसी भी विक्रेता के लिए हमें कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है. पहली बात तो है उनका डिजिटल रूपांतर. तो कोई भी विक्रेता जो भी बेचता है उन वस्तुओं के चित्र, उनका विवरण, उसका दाम, ये सारी डिटेल्स जानना ज़रूरी है ताकि कोई ग्राहक कहीं से अगर उसको देखेगा तो ठीक है ये चीज़ मुझे चाहिए. तो ये डिजिटल रूपांतर पहले ज़रूरी है.
उसके बाद हर आइटम की इन्वेंट्री कितनी है, रेडी इन्वेंट्री है नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है तो ऑर्डर नहीं आ सकता है। तो ये उनका हम कहेंगे प्रोफाइल तैयार करना। तो डिजिटल रूपांतर इसका पहला कदम है। उसके बाद फिर उनकी ट्रेनिंग करना कि जब कोई आप अगर मेरी दुकान पे आए तो मैं आपको आइटम दे दूंगा, उसको घर ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने डिजिटली ऑर्डर किया तो फिर उसको पैक करना मेरी जिम्मेदारी है। तो पैकिंग कैसे की जाए, अगर जैसे फूल जैसा कोई सॉफ्ट आइटम है उसको पैक कैसे करेंगे, कांच जैसा फ्रेजाइल आइटम है उसको पैक कैसे करेंगे, अगर शहद बेच रहे हैं या कुछ आप ऐसे इस तरह का बेच रहे हैं जो लिक्विड है उसको कैसे पैक किया जाए। तो ये ट्रेनिंग दी जाती है उनको, फिर वो रेडी हो जाते हैं इस काम के लिए कि नेटवर्क से जुड़ेंगे। तो जो उनका जो डिजिटल रूपांतर है अब ये बैठेगा कहाँ पे, तो ONDC नेटवर्क से जुड़े सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं। सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनके कैटलॉग मौजूद किए जाते हैं। तो एक बार इनका कैटलॉग इन पार्टिसिपेंट्स में मौजूद हो गया तो कहीं भी देश में आप हमारी बायर एप्लीकेशन से उनसे खरीद सकते हैं। तो काम जो आप बोल रहे हैं उसमें कि कोई उन तक पहुँचे जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स करेंगे, उनको इस डिजिटल रूपांतर में मदद करें, उनको इस ट्रेनिंग में मदद करें। और हमारे पास आज 75 सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से किसी से भी इनको जोड़ दें ताकि ये नेटवर्क में मौजूद हो जाएंगे। और ये ONDC का ये इन्वेस्ट इंडिया का पार्ट है या दिस इज स्टैंड अलोन? स्टैंड अलोन है। इन्वेस्ट इंडिया और ONDC दोनों ही DPIIT से जुड़े हैं, तो एक तरह से आप कह लीजिए कि हम भाई बहन हुए, पर दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन है। हम एक दूसरे के साथ काम बहुत करते हैं पर ये दो कम्प्लीटली अलग ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कॉस्ट कौन बियर करेगा? किस चीज़ की? ट्रेनिंग का, अपग्रेडेशन का, डिजिटाइजेशन का? हाँ, तो यही ग्रामीण फाउंडेशन लेके आ रहे हैं। तो एंड यूजर बियर करेगा कि नहीं करेगा? आप डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं या इवेंचुअल कॉमर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, तो डिजिटाइजेशन में ही ग्रामीण फाउंडेशन इस मामले में मदद कर रही है, डिजिटाइजेशन के काम में। जहाँ तक कि नेटवर्क का सवाल है, नेटवर्क की इस वक्त कोई चार्जेस नहीं है। नहीं, मेरा ये मानना है जो अपना ONDC पे आएगा उसको जो आपने कहा डिजिटाइजेशन करेंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, उनको ब्रांडिंग और विजिबिलिटी बढ़ाएंगे, तो उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा? कितना कॉस्ट आएगा? ये दो अलग सवाल है। हाँ, ठीक है, प्लेटफॉर्म। इनका सवाल है डिजिटाइजेशन का, आपका सवाल है नेटवर्क को यूज करने का। नेटवर्क याद रखिए, प्लेटफॉर्म नहीं। हाँ। तो नेटवर्क यूज करने के लिए अभी कोई फीस नहीं है। फीस आएंगी भविष्य में, पर बहुत ही कम होंगी। तो ये ऐसी फीस नहीं होंगी कि जिससे किसी का बिजनेस रुक जाए। ठीक है, तो अब फीस की बात कुछ महीनों बाद हम करेंगे। फिलहाल आप मान के चलिए कि ये फ्री है। दूसरी बात भी नहीं है, डिजिटाइजेशन, कोई कमीशन नहीं है ONDC पे आने का? कमीशन है। कितना % है? तो ये अलग अलग पार्टी से, मैंने बताया 75 नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनके अपने अपने कमीशन है। आपको जो मतलब किसी भी विक्रेता को जो सुविधाजनक लगे वो उनसे जुड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत ऑप्शंस है हर विक्रेता के लिए, जरूरी नहीं कि किसी एक के साथ ही जुड़ें। और मैडम वो बता दीजिए। हाँ, ये देखिए, इसमें जब ऑनबोर्डिंग जिसको हम कहते हैं, अगर नेटवर्क पे जाना है तो उसमें इनिशियली अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल लें या कोई विमेन या कोई आर्टिजन ले, हर व्यक्ति अलग स्टेज ऑफ डिजिटल हाईवे पर है। कुछ हो सकता है कि जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्मार्टफोन पे वो किस तरीके से ऊपर जाएगा आर्टिजन, तो उसके लिए उसको एक बेसिक लिटरेसी चाहिए। यहाँ बेसिक लिटरेसी बिल्डिंग का काम, देयर इज सम फिलेंथ्रोपिक पार्ट जो कि हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट का काम, वो हम लोग अपने एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स में जहाँ जहाँ हम हैं करेंगे, और जहाँ हम नहीं हैं वहाँ क्योंकि ये काम है इसलिए उसके लिए हम कहीं ना कहीं से ग्रांट्स, जिसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिक कैपिटल, जुटाएंगे ताकि इस तरह के काम हो, लोग जो हैं वो नेटवर्क से जुड़े। ये कैपिटल लाना कि किस तरह से काम होगा ये हमारा काम है, लेकिन ये मॉडल टेस्टिंग के लिए तक ठीक है। सपोज एक मॉडल टेस्ट हो गया कि ऐसे काम हो सकता है। अब इंडिया वाइड अगर काम करना है और बीच में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जुड़े हैं, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक सर्विस फी ज़रूर एंड में लेगा कि अगर मैं आपका पूरा प्रोफाइल, आपके प्रोडक्ट्स का कैटलॉग बनाती हूँ तो वो कोई सर्विस फ्री नहीं होगी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उसको चार्ज कर सकता है, वो एक नॉमिनल। आई थिंक हमारा नेक्स्ट 1 ईयर में इनके साथ काम चलेगा और नेक्स्ट 1 ईयर में हमको ये मॉडल क्लियर हो जाएगा कि प्राइसिंग मॉडल कौन सा है जो लोग चढ़ना चाहते हैं इस नेटवर्क पे उनके लिए भी वायबल है और जो उनको असिस्ट करेंगे उनके लिए भी वायबल है, क्योंकि ऑल पार्टीज का विन विन इसमें ज़रूरी है, अदरवाइज ये सस्टेनेबल नहीं होगा। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट स्कीम की तरह 100% सब्सिडी पे चलती रहे। एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक एम है कि भाई आपको रिस्क लेने का क्षमता आनी चाहिए और आपको ये क्षमता होनी चाहिए कि हर चीज़ का एक प्राइस है, बट वो प्राइस अफोर्डेबल हो, इसके लिए मॉडल एवोल्यूशन हमारा काम है। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
I've been following it for last 2 years now. Very exciting. But I just want you to breathe the steps. For example, आपने एक step बताया that he has to digitize all his products और उनका pricing लगाना है उसको. That is one part. जी Other than that, what app he has to download, etc. थोड़ा सा steps बता देंगे so that I as an individual am able to tell some 100 people कि बाबा get on to ONDC. ठीक है। तो मैं पहले एक शायद पहचाना हुआ उदाहरण देता हूँ जिससे ये बात समझ में आ जाएगी। यूपीआई सब जगह फैल गया है, ठीक है। अब किसी भी दुकान पे, ठेले पे भी अगर जाएंगे या सड़क किनारे किसी विक्रेता के पास जाएंगे, वो कार्ड उनके पास रखा हुआ है। वो कार्ड किसी एक यूपीआई कंपनी का है। उस कंपनी के लोग उस विक्रेता तक पहुंचे, समझाया उसको, उनका अकाउंट बनाया, यूपीआई उनके ऐप, अपनी उनकी जो भी ऐप है इंस्टॉल की और उनका कार्ड वहाँ पे रख दिया। तो किसी ने एक कंपनी का लिया, किसी ने दूसरी का, किसी ने तीसरी का, अलग अलग कंपनी के ऐप से अब यूपीआई से जुड़ गए हैं। इसी तरह ओएनडीसी में भी जो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट मैं कह रहा हूँ, ये जाके मिलते हैं विक्रेताओं से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किराने की दुकान हो, उनको समझाते हैं पहले ओएनडीसी क्या है, उसके बाद वो डिजिटल रूपांतर करते हैं उनके कैटलॉग का। कुछ हद तक अगर किराने की दुकान है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन मौजूद है क्योंकि कंपनी स्टैंडर्ड है, ब्रांड स्टैंडर्ड है, साइज स्टैंडर्ड है, तो वो इन्फॉर्मेशन पहले से तैयार है, तो उनको सिर्फ टिक करना है कि अच्छा इसके पास ये आइटम है और वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसमें हम ये भी मदद कर रहे हैं कि जो पूरा सब कंपनीज का मिलके जो प्रोडक्ट्स है उनका एक सिंगल कैटेगरी कैटलॉग सिस्टम बनाए, जिससे किसी को भी अगर ऑनलाइन लाना हो वो उस मास्टर कैटलॉग से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से उनको डिजिटल कर सकें। तो पहला कदम होता है प्रोफाइल का, क्योंकि इसमें शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नंबर हो उनका, या जीएसटी नंबर हो, या वो सब ना हो तो आधार आइडेंटिटी से, कि जो बेच रहा है उसकी आइडेंटिटी एक आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। तो पहले वो उसकी प्रोफाइल कंफर्म करेंगे, केवाईसी, उनका हर आइटम का डिजिटल रूपांतर करेंगे और अपने सिस्टम पे उसको लाइव कर देंगे। जैसे ही लाइव कर दिया, फिर हम में से कोई भी बायर एप्लीकेशन के जरिए उनको खरीद सकता है। अब उनके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि पैसे डिजिटली आएंगे, कोई कैश लेके उनके दुकान तक तो जाएगा नहीं। फिर उसमें अगर पैकिंग की अगर उनको सीख देनी है तो वो भी वहीं पे सीख दी जाएगी। तो ये ट्रेनिंग के लिए हम ट्रेनिंग सिस्टम भी बना रहे हैं। तो आज हमारी एक एकेडमिक कोर्स है, 27 वीडियो हमने उसमें बना लिए हैं कि किसी भी विक्रेता को रेडी होने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। तो आज, और ये 10 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है, तो किसी भी भाषा में डायरेक्टली वो खुद से सीख सकते हैं, और इसको भी हम बढ़ाते जाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी। Somebody who is little bit tech savvy, जी। can he or she do it on his own? इन थियोरी यस, पर अभी शुरुआत है इसलिए इतना आसान नहीं है। एक और उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है, तो अगर टेक सेवी है तो वो खुद एक कंप्यूटर खरीद के खुद का सर्वर बना के उसके ऊपर लोड कर सकता है, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। पर अगर वो सब हमको नहीं करना है तो हम किसी स्टैंडर्ड सिस्टम पे जाके अपना कंटेंट डाल देंगे और हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इसकी ज़रूरत है नहीं, अगर वो जानता है और करना चाहता है तो कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉफ्टवेयर रेडी रहेगा, तो अगर और कंपनीज ऐसी हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं कुछ जो ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो जब सॉफ्टवेयर रेडी रहेगा तो लोग खुद से यूज़ करके कर सकेंगे। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ टैली सॉफ्टवेयर का। तो हो सकता है किसी कंपनी को कोई चार्टर्ड अकाउंट की ज़रूरत पड़े कि वो आके आपकी अकाउंटिंग करे, या फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस है और जानकारी है टैक्स लॉज की, तो आप टैली सॉफ्टवेयर लेके खुद से भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी, अनुभव और कॉस्ट की बात है। अगर आप उस कॉस्ट को बेयर करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वेबसाइट बनाने के लिए फ्री सिस्टम भी मौजूद है, फ्री डिज़ाइन भी मौजूद है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So my first step is there any app called ONDC? नहीं जी, नहीं। नहीं। जस्ट First द वे step देयर इज क्या नो ऐप कॉल्ड यूपीआई, देयर इज नो ऐप कॉल्ड ओएनडीसी, so देयर इज what- नो ऐप कॉल्ड ब्लूटूथ। तो ये सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, और अलग अलग ऐप इसको यूज करती हैं और दूसरे ऐप से जुड़ के उनके साथ संपर्क करने के लिए। I've got 3 books which I want to sell, my जी। own books. जी। What do I do? सो फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू इज, आप अपने फ़ोन पे ondc.org खोलिए, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का चिन्ह दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपका पिन कोड पूछेंगे, आप कौन से आइटम बेचना चाहते हैं, और फिर आपको 2 ऑप्शन देंगे, या तो आपको कांटेक्ट दिया जाएगा किसी पार्टिसिपेंट का जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, या आपसे परमिशन ली जाएगी कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर दें, फिर आपको कोई कांटेक्ट करेगा। ईस्टर्न यूपी में हम लोगों का काम सबसे ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में महाराष्ट्र का नहीं,
महाराष्ट्र में पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में हम लोग चंद्रपुर में हैं, गोंदिया में हैं, नागपुर में हमारे टीम मेंबर एक बैठते हैं, प्लस हम लोग भंडारा में भी थोड़ा काम करते हैं। 5 राज्यों में हम डायरेक्टली हैं और इनडायरेक्टली हम कहते हैं जैसे हमारे जितने नेटवर्क मैनेजर्स पार्टनर्स हैं, ऑल इंडिया में BC नेटवर्क मैनेजर्स प्रेजेंट हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे हर गांव को सर्व करने के लिए टेक्निकली एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है इंडिया में, राइट। तो वो उस तरह का स्केल आउटरीच सब जगह है, उसका कोई लिमिट नहीं है। जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ज़्यादा डेप्थ होगा। हेलो मैम। मैम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करेंगे आप ये ग्रामीण इलाकों में, इसके ज़रा स्पेसिफिकेशन। सो करंटली हम कैसे कर रहे हैं मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने जैसे जहाँ ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आपको पता है कि अगर हम गांव में महिलाओं के साथ बात करें जो कि जिनके पास टाइम पॉवर्टी हम कहते हैं, समय की कमी है, वो किसी ट्रेनिंग सेशन के लिए या किसी भी जो नॉर्मली मेल फार्मर्स चले जाते हैं उस तरह के ट्रेनिंग सेशन के लिए वो टाइम निकाल के जा नहीं पाएंगी। उनके पास समय कब होता है, सुबह थोड़ा और शाम को थोड़ा, जिस समय कोई ट्रेनिंग क्लास नहीं चलती। तो इस तरह की जो टाइम की पॉवर्टी है, स्पेस मोबिलिटी का लिमिटेशन है, उसको गैप भरने के लिए हम लोगों का एक एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल के लिए जीलीप, जो कि एक लर्निंग ऐप है। आप अगर गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे आप भी फ्रीली उसको डाउनलोड कर सकेंगे। उसमें 70 से 80 कोर्सेज रहते हैं। वो कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन ऑफ कि मैं एक वुमन फार्मर हूँ और मैं फार्म आधारित कोर्स करना चाहती हूँ तो मैं सेल्फ लर्निंग उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर सकती हूँ। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो बेसिक स्किलिंग कर सकती हूँ। तो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक डिजिटल लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी ये लर्निंग हम लोग कहते हैं एसिंक्रोनस है, मतलब जब आपको समय मिले आप करें, बट हम धीरे धीरे इसको सिंक्रोनस लर्निंग भी कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि ज़्यादा लोग एक ही टाइम पे लगेगा एक क्लास में बैठे हैं, बट ये पूरा ग्रामीण और पुअर लोगों के साथ के लिए ही हमारा ये प्रोग्रामिंग है। फिर है डिजिटल ट्रेड, जैसे कि अगर आपको रिटेलिंग करनी है या आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को किसी प्लेटफॉर्म पे विजिबल होना है तो ये सहयोग भी हम देते हैं। हमारे कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 600+ एंटरप्रेन्योर्स हैं महाराष्ट्र में, सर पूछ रहे थे, जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की तरह महिलाएं काम करती हैं। जो महिलाएं कभी भी अपने घर के बाहर किसी बिजनेस पर्पज से नहीं गई, आज वो घर घर जाके दूसरी महिलाओं का, जो दिव्यांग है उनका, जो ओल्ड एज लोग हैं उनका पेंशन एक्सेस वगैरह में डिजिटल उसके माध्यम से सहयोग दे रही हैं। और ये एप्लीकेशन ग्रामीण ने ही बनाया है, जिस एप्लीकेशन के माध्यम से वो ये सब कर रहे हैं। तो ग्रामीण का पूरा फोकस रहता है कि जो भी करें वो डिजिटल माध्यम से ही करें। प्लस हम पार्टनरशिप्स की भी बात करते हैं। जैसे अभी हम एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं जिनके पास फार्म डॉक्टर का एप्लीकेशन है ऑलरेडी, और वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है कि कोई भी अगर हमारा एंटरप्रेन्योर वुमन एंटरप्रेन्योर है वो किसी फार्मर के पास जाके फ़ोटो लेके उसके क्रॉप का बता सकती है आपका क्या डिजीज़ है। उसको डॉक्टर मतलब फार्म की कोई डिग्री नहीं चाहिए, बट वो नेटवर्क्ड है फार्मिंग सर्विस प्रोवाइडर से कि डायरेक्ट वो उसके विजुअल से उसका स्क्रीनिंग होगा और क्या वो उपयोग कर सकता है फार्मर, वो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो एक तरह से जो एंटरप्रेन्योरशिप हम प्रमोट करते हैं महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, उनको ही डिजिटल सेवी बनाते हैं। ये हमारा प्राइम मतलब ये मेन चीज़ है। टेक्नोलॉजी ग्रामीण के काम में इंडिया वाइड मेन काम रहता है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया। थैंक यू। Thank you once again for such mind-boggling questions, and thank you also for the answers that clarify a lot of things. It has been a great learning for me and many others. Thank you, Rahul. Heartfelt appreciation to to Mr. Srish Joshi for being part of this event, being able to provide the kind of inputs that he has been able to provide here, and Madam Bharti Joshi, Nandita, and the team from Grameen, ONDC, and the media persons and the esteemed partners of ours who have graced this association, this event here. It's been today we embark on a new journey. We have just forged a new partnership where we are looking at enabling the BC networks to actually look at further substantiate their revenues for themselves. And I'm sure the two organizations combined, and with our support of our partners, the BCNM partners, and the guidance of BCFI organization as well as the Gates Foundation, we would be able to make it a success as a pilot, and then we will look at scaling it up further. I would like to thank all of you for being part of this event, and thank you, and I wish you all a very good day.